ਹੁਣ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है when the distance between two charged particle is halved the coulomb force between them becomes। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ distance between two charged particle ਸਪੋਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ F = 1/4 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट Q1 Q2/r² ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ r ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਕਰਤੀ ਤਾਂ r/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ r2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 × 1/4 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट Q1 Q2/r² ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 4 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ r/2 ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ two charges are at distance d apart in air coulomb force between them is F है ना if dielectric material of dielectric constant k is placed between them the coulomb force now becomes ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ F = 1/4 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट Q1 Q2/r² ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/4 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ K ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ A ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ F/K ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ F ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ K ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ नेक्स्ट क्वेश्चन की है 2 point charges Q1 and Q2 are at separation R. The force acting between them is given by F = K Q1 Q2/r²। K ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ K ਆ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ K ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ K ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/4 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਹੈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ K ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ only on the system of units ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ only on the medium between charges medium ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਫੋਰਸ ਸੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਆਇਆ ਤਾਂ 1/K ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ 1/4 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੋਥ A ਐਂਡ B ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ 1/4 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ 1/4 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਆਹ ਵਾਲਾ K ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ K ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ ਆਹ ਵਾਲਾ K ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ K ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਿਆ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ K ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ नेक्स्ट क्वेश्चन की है अपने को 3 charges +4Q Q and Q are placed in a straight line of length L at points at distance 0 L/2 and L respectively. What should be Q in order to make the net force on Q to be 0? या तो वो थोनों कह देंगे भी net force देखो भी Q ते 0 बनता है आ वाले Q ते है ना ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4Q ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੱਸ 4Q ਆ, ਇਹ 0 ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ L/2 ਤੇ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ Q। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਹੈ, Q ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ Q ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਔਨ Q। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ Q ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਦੋਂ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ Q ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗੀ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲੀ 1/4πε0। ਕਿਉਂ ਆ Q ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ Q ਨੂੰ 4Q ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ठीक है। आ टोटल अपने को L होगी, ठीक है। ए वाली डिस्टेंस टोटल L होगी। 4Q जदों आप 4Q दे नाल लईए, ठीक है, उदों अपने कोल की है डिस्टेंस L है, उदों अपने कोल ये डिस्टेंस L दी स्केयर होगी जदों 4Q दे नाल लईए। जदों Q नूं आपां ਇਹ ਵਾਲੇ Q ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ Q ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ L/2 ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ 0, ਇੱਥੇ 0, ਫਿਰ ਇੱਥੇ L/2, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ 0 ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LK ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ L, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ठीक है। ਆਪਾਂ 1/4πε0 कॉमन ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ। 1/4πε0 ਇੱਕ Q ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ L²/L²। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚਿਆ 4Q, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ Q ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ 4Q ਪਲੱਸ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ Q ਆਇਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੀਚੇ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4 ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਜਿਵੇਂ 4Q ਪਲੱਸ 4 कैपिटल Q इज इक्वल टू 0 आ जूगी अपने को। आप Q की वैल्यू फाइंड करनी है ना न्यूमेरिकल दे विच, तो Q की वैल्यू की आ जूगी 4Q की वैल्यू -4Q, तो अपने को 4 नाल 4 कैंसल, तो Q की वैल्यू कितनी आ जूगी -Q। तो अपने को आंसर की हो गया अपने को ऑप्शन ए, ठीक है। नैट फोर्स जदों एवें देखना भी ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ वाले चार्ज नाल ਇਹਦਾ दूजे वाले चार्ज नाल, 0 तो पहला ये पहले वाले की डिस्टेंस 0 आ, फिर पहले वाले तो L/2 इत्थों इन्नी क, फिर आ 0 तो इत्थे तक सारी L होगी, ठीक है। तां ही आपां इत्थे L लगाया, तो एक ही वैल्यू आ गई -Q। नैक्सट क्वेश्चन की है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है वैसे शायद आवे, बट फिर भी देख लेने। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट through a vertical height h in a uniform and vertically upward directed electric field। यानी कोई इलेक्ट्रॉन फॉल करता है रेस्ट तो, मीनस ਉਹਦੀ इनिशियल वेलोसिटी की है u की अपने को 0 है इलेक्ट्रॉन दी, ठीक है। 20th क्वेश्चन है, ठीक है। u की वैल्यू की है 0, h की वैल्यू दी हुई है अपने को, ठीक है। The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from the rest in it through the same height, vertical height. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton पता करना है भी इलेक्ट्रॉन का फॉल टाइम कितना डिपेंड करता है, तो प्रोटोन का फॉल किवें ਉਹਦੇ ਨਾਲ कंपेयर करना भी वो स्मॉलर है कि इक्वल है कि
इलैक्ट्रॉन का क्या टाइम ज़्यादा है, क्या इलैक्ट्रॉन का टाइम 5 टाइम्स ज़्यादा कि 10 टाइम्स ज़्यादा है। ਹੁਣ देखो जो अपने को इनीशियल वेलोसिटी u 0 है तो अपने को h की वैल्यू दी हुई है ना, h की वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू सॉरी h दी हुई है। ठीक है, एक अपने को फॉर्मूला हुंदा है s इक्वेशन ऑफ मोशन तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वेयर, या तुसी gt कह लो चाहे तुसी at कह लो, वैसे इत्थे a ही लगाने आ। ਜਦੋਂ फॉल करती है जी आती है, बट ये फॉल की अंडर हो रही है इलैक्ट्रिक फील्ड दे। जो फॉल अंडर ग्रैविटी होंगी है उदों तो आप इत्थे जी लगाने होंगे वैसे। ठीक है, जो फॉल होगी इलैक्ट्रिक फील्ड दे तो अपने आ एक्सलरेशन की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ये जी डिस्टेंस अपने को एच है तो एस की वैल्यू की है एच, यू की वैल्यू की है 0 तो इतने 0 आ जाऊगा प्लस हाफ at स्क्वेयर है ना। हुण अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड च आपां एक्सलरेशन किवें फाइंड करांगे, एक फॉर्मूले तो। फॉर्मूला किहड़ा अपने को एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, एफ आपां नूं पता है कि फोर्स क्या हुंदा, मास इनटू एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बन गया ना। इतों अपने को फॉर्मूले तो किया गया ए इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम। हुण आपां ए वाली ए की वैल्यू ये पुट कर देंगे क्योंकि आपां नूं ए की वैल्यू चाहिए सी। तो एच इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाय एम टी स्क्वेयर। ये आप एम की फॉर्म के ले आती। फिर उस तो बाद की करना, टी स्क्वेयर की वैल्यू कढ़नी है और टी स्क्वेयर की हो जाएगा एच 2m ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्यू ई। तो टी की वैल्यू की आ जाऊगी एच 2m पॉइंट क्यू ई का अंडर रूट। इत्थे वैसे आप है ना ये सब कुछ तां कीता क्योंकि आप टी का रिलेशन मास के नाल करना सीगा। इत्थे डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू अंडर रूट एम आ गया ना अपने को। ये अंडर रूट एम आप किया क्योंकि आप इलैक्ट्रॉन तो प्रोटोन की कंपैरिजन करनी है। क्वेश्चन के विच आपां नूं यही दिता हुआ इलैक्ट्रॉन तो प्रोटोन की कंपैरिजन करनी है। हुण जदों टी दी अपने को डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू अंडर रूट एम आ गई वैल्यू, तो यह मतलब मास इलैक्ट्रॉन का घट हुंदा ना। जे मास इलैक्ट्रॉन का घट हुंदा तो अपने को आ भी तो टाइम ऑफ फॉल भी तो इलैक्ट्रॉन का ही घट होगा, तो इत्थे की हो जाऊगा स्मॉलर। इन्होंने पूछा इलैक्ट्रॉन का होया तो आप स्मॉलर लगाता। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की है अपने को विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज, कूलम, स्टैट कूलम, एप कूलम या ऑल ऑफ दीज। इन्हां विच कूलम तो हैगी, वो हैगी, स्टैट कूलम भी हैगी है क्योंकि ये सीरीयस यूनिट है आई थिंक। तो उस बाद एप कूलम भी होएगी जो अपने को कूलम तो स्टैट कूलम होंगी है, थोड़ी बुक च दोनों दी हुई हैं। एप कूलम भी होगी तो यदा आंसर की होगा ऑल दी अबव। नैक्सट क्वेश्चन की आ, अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्जड, इट हैज़ एक्सैस ऑफ पॉजिट्रॉन डेफिशिएंसी। हुण आपां नूं पता पॉजिटिव चार्ज कदों बनती है कोई बॉडी, जो इलैक्ट्रॉन की करती है दे दिंदी है, अपना इलैक्ट्रॉन किसी होर नूं दे दिंदी है ना। ए पॉजिटिवली चार्ज बन जूगी तो ये कोल की हो जूगी इलैक्ट्रॉन की घाट हो जूगी ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन हो जूगी। तो यदा आंसर की है सी। प्रोटोन की तो गल नहीं है, पॉजिट्रॉन की भी नहीं गल हैगी, एक्सैस तो है ही नहीं क्योंकि जो एक्सैस होगी फिर तो यह नैगेटिव चार्ज हो जाऊगा। नैक्सट क्वेश्चन की है, अ प्रोटोन एट रेस्ट हैज़ अ चार्ज ई वैन इट मूव्स विद ए हाई स्पीड इट्स चार्ज। हुण अपने आपां पता चार्ज की हुंदा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं ना आपां, चार्ज की वैल्यू सेम हुंदी है तो चार्ज की वैल्यू की हुंदी है एन ई दे इक्वल। तो ये की भी आ जाऊगा अपने को ऑप्शन च भी अपने को चार्ज की वैल्यू ना ग्रेटर, क्योंकि चार्ज कोई डिपेंड नहीं करता स्पीड पर, चार्ज की वैल्यू स्पीड पर नहीं डिपेंड करती, तो इक्वल टू ई होगा। यदा आंसर की होना 23 का सी। Two charges 3 into 10 raised to power minus 5 coulomb and 5 into 10 raised to power 4 coulomb are placed at a distance of 10 centimeter from each other. Find the value of electrostatic force between them. ये तो सिंपल है ना,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होंगी 9 × 10⁻⁹, ठीक है, इंटू फिर Q1 Q2 होंगे ना, तो इत्थे तो आना नहीं गा, Q1 Q2 करके बाय r² बाय 10² कर देना। इत्थे Q1 Q2 जी आ वैल्यू दी है मल्टीप्लाई करके थोड़े को कैलकुलेटर होगा, वो मल्टीप्लाई करके थोड़े को आंसर आ जाऊगा, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन की है अपने को, what is the value of minimum force in Newton acting between two charges placed at 1 meter apart from each other? minimum value of force पता करनी है। न्यूटन दे विच दो चार्ज दिते, सिर्फ डिस्टेंस दिती है, होर कुछ नहीं दिता हैगा। दो चार्जिस किहड़े दिते हुए ने, घट तो घट चार्ज, मिनीमम चार्ज आपां नूं पता क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कहंदा, Q इज इक्वल टू NE, कि चार्ज की हुंदा इंटीग्रल मल्टीपल हुंदा, सब तो घट चार्ज हुंदा अपने कोल ईओ हुंदा है, क्योंकि जो n की वैल्यू 1 लैंदे ना उदों अपने कोल मिनीमम चार्ज हुंदा, जो 2 लैंदे तो डबल हो जाता चार्ज का, 3 लैंदे n की वैल्यू एवें हुंदी है ना 0, या तो 0 हुंदी है या 1 2, 0 नहीं हुंदी शायद 1 2 3, क्योंकि जो 0 होगी फिर तो चार्ज होया ही नहीं, 1 2 3 सो ऑन होगी है ना। तो अपने को मिनीमम चार्ज की वैल्यू की होगी ई, तो अपने को फोर्स मिनीमम की हो जाएगा, फोर्स मिनीमम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नूं चाहे तुसी के ले लो, क्योंकि इन्होंने ना एक टर्म ऑप्शन दे विच सारियां च के लिया होया, तो आपां की लेना के ही लेना, ठीक है। चार्ज अपने को की है मिनीमम ई इंटू ई, Q1 Q2 की थां ते बस आप ई इंटू ई कर देंगे बाय r², r किन्नी है 1 दी स्क्वायर, तो यह अपने को आंसर क्या आया ke² इसका आंसर आया, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन की है, अ ग्लास रॉड एक्वायर्स चार्ज बाय रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ, द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड इज ड्यू टू फ्रिक्शन।